Hi guys, good evening. Good evening everybody for coming in. Fantastic. Today is going to be an outstanding day and we have a fantastic speaker. But before I even get him, let me first get him on 1 minute. Yes, let me make him a co-host. Perfect. Guys, fantastic. I've got Pankaj Gupta with me and he's the co-host also right now. This guy is outstanding. He's superb. But before I even get him, I think Pankaj Gupta has started his screen share. Okay. Pankaj, it's fantastic. But before we get you on stage, let me introduce you because a talented guy like you, roaming with the cream of FLP all over the world. In fact, you get a lot of guests coming from abroad and, blessing your house. So I think I should welcome you in a very proper way. Just to tell you about Pankaj Gupta, he is a NetCore member from day one. So he's not joined us right now. He's with NetCore from day one. I mean, from the time the NetCore started, he's a member. He was in a government service with the customs for 28.5 years. That means nearly 29 years he was with customs, with the government of India. So imagine leaving that and coming into Forever shows something that you should understand. 20 years in the industry, 15 years experience in Forever. In Forever, he's 15 years old. He's a soaring manager, guys. So soaring managers, when you have 5 managers under you in different legs, you become a soaring. He's in the Millionaires Club. He's one of the Millionaires Club because many people ask me, in my company, I've got 2 people who have joined. I said, let me wait. In our company in Forever India, we have 4,000. I repeat, 4,000 people who are in the Millionaire Club. So this guy is again outstanding. He's also in the Millionaire Club. Attended MGR 8 times. Again, manages retreat, fantastic. EMR, he attended twice. Attended FGRs 7 times. Guys, these are all achievements, okay? Then he qualified 6 times for Forever to Drive. That's our car plan. The company gives you a car, the car of your choice. And 6 times he's qualified, level 1, level 2 achiever. Profit share, he's qualified several times. So I don't want to waste time on me talking because we have such a fantastic, talented guy. So we like to bring Pankaj. Pankaj, can you welcome you, sir? Pankaj, hi. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Simon, sir, first of all, just let me know my voice and my video, are they both clear and my screen also? Fantastic. If you can speak a little louder and come a little more closer to the mic, it'll be great. Don't worry, don't worry. Is it clear now? Yeah, but can we see your chehra? Because the people No, I have opened up my video also. I have started it. Okay, good. Can you see it, sir? No, I can't. I can only see your PowerPoint presentation in Hindi. I can't see your face. But I have actually started my video also. I don't know what. Okay. Yeah. Oh, but I can't see your face. It's okay. My camera is working and I can see your PowerPoint right now. I can see your I think you shared a screen. Hold for a while then. Yeah. Can you see me now? 1 minute. Yes. Now I can see you. Let me pin your video, sir, so that you'll be. We'll have you throughout. Yes, fantastic. You're looking smart and younger, boss. Thank you very much, sir. Just because of power of Forever, actually. This is the result of Forever now. I mean, जो आप पहले गवर्नमेंट ऑफिस में थे और अभी में बहुत फर्क है. और I'm just 15 years old now. Okay, is my screen shared now with you? Yes, perfect. Now you're great. You're okay, good. You can see my screen now. Perfect. Your volume is good. Your sound is good. Everything is good. Please carry on. Thank you, sir. Thank you. So, welcome again. I would like to welcome you for my full team, the massive Bombay team, and even Surya Sinha is going to join us today. He was very eager to see your presentation, so he's also going to be there. And we have Rajiv, we have Jyoti, we have Kanojia, we have Santosh. All fantastic, and all these people love you. सभी बुद्धजनों को, सभी सीनियर्स को मेरा प्रणाम. और साइमन सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे मौका दिया. और मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों की, साइमन सर वो व्यक्ति हैं जिनकी छत्र छाया में एक्चुअली मैं नहीं, बहुत सारे लोगों ने फॉरएवर बिजनेस को करना सीखा है. और ही इज एक्चुअली हिमसेल्फ अ पिलर, हिमसेल्फ अ माइलस्टोन. माने इनको देख करके लोगों ने अपनी मंजिलें निर्धारित की हैं. तो आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति के
साथ काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये आपका सौभाग्य है। आपको अपने आप से साइमन सर का हाथ मानते हुए ऐसे अपने कंधों को टैप पैट करना चाहिए, ताकि आप अपने आप को इस बात के लिए खुशनसीब माने कि आप साइमन सर की टीम का हिस्सा है। ओके, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अभी मैं एक साहब का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो बनियान में प्रदर्शित हो रहे थे, तो मेरी प्रार्थना है कि अगर आप बनियान पहन करके रहना चाहते हैं गर्मी की वजह से, तो अपने वीडियो को प्लीज बंद कर लीजिए, क्योंकि शायद से इस ग्रुप में महिलाएं भी बैठी हैं। और मेरा आपको सजेशन है अदरवाइज भी कि अगर आप एक बिजनेस अटायर में होंगे, मैंने आपकी ड्रेस एक प्रोफेशनल टाइप होगी तो अच्छा रहेगा। आपके वीडियो और माइक अगर बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ आपके मोबाइल को लैंडस्केप में रखेंगे तो प्रेजेंटेशन को आपको समझने में बहुत मजा आएगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ साइमन सर का मेरा काम आसान करने के लिए, क्योंकि मैंने जो अगली अपनी स्लाइड में एक पॉइंट रखा था वो मैं हटा देता हूँ। यस, लेकिन जो साइमन सर ने आपको बताया मेरे बारे में, आपको उसके आधार पर निर्धारित करना होगा। और साइमन सर जस्ट लेट मी नो, हिंदी चलेगी, इंग्लिश चलेगी या इंग्लिश चलेगी? सर, whatever you're comfortable, we are okay. Because in forever it's more of body language. Oh yeah. so you get Hindi, English, makes anything. Whatever you're comfortable, we are comfortable, sir. The topic I'm going to discuss today is the future. ओके, सो मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं उस भविष्य के बारे में जो आपकी राह देख रही है। एक ऐसा भविष्य जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, एक ऐसा भविष्य जिसको इंडस्ट्री में 20 साल होते हुए मैंने एनालाइज किया है। मैं आपको बता सकता हूं बड़े फख्र के साथ कि मुझे इस इंडस्ट्री में 20 साल हो चुके हैं। एमवे वाज माय फर्स्ट कंपनी वे बैक टू 1999। और जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था तो शुरुआती दौर में मेरे साथ कई लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई थी, और मैंने बोला था एक दिन आएगा जब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जाएगा, एंड वो दिन आ चुका है। मैंने एक बात और बोलनी शुरू करी है, मैं आपको बता देता हूँ उस फ्यूचर के बारे में अभी बाकी स्लाइड के अलावा, कि एक समय आएगा जब आपके और हमारे बच्चे बड़े हो रहे होंगे, और खास तौर से वो लोग जो शादी के लायक हो रहे होंगे, समझिएगा मेरी बात को, तो वहां पूछा जाता है ना, अभी तो क्या पूछा जाता है कि आपका बेटा क्या करता है, बोले जॉब करता है, कहाँ पे करता है, तो कंपनीज के नाम के आधार पे शादियां निर्धारित होती हैं। आने वाला समय आने वाला है जहां पर कि बच्चों की शादियां इस बात पर निर्धारित होगी कि बच्चा करता क्या है, बोले नेटवर्क मार्केटिंग, कौन सी कंपनी में करता है, फॉरएवर में, लेवल क्या है, मैनेजर, बोले शादी पक्की। और अगर आप में से जो गर्ल्स हैं, मैं आपको बता सकता हूँ आपका भविष्य कितना अच्छा है, आपको दहेज देना नहीं पड़ेगा, आपको मिलेगा, राइट? सो दिस इज द फ्यूचर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट। और आपको मजा आने वाला इस प्रेजेंटेशन को मैंने डिजाइन किया स्पेशली एफएलपी इंडिया को ध्यान में रखते हुए। लगभग 1 घंटा मैं आप लोगों के साथ रहने वाला हूं, और इस 1 घंटे में मैं आपके साथ कई सारी एक्सरसाइज करूंगा। मुझे आपके कागज और पेन चाहिएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा, एक बात मैं आपको बताना और चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, मैं बेसिकली अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता, कभी भी मैंने अपना कुछ नहीं कहा है। मैंने बहुत सारे गुरुओं से सीखा है, और उन गुरुओं से सीख करके जो मुझे लगा कि मेरे माध्यम से आप तक पहुंचना जरूरी है, मैंने उसको अपनी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस में आपके लिए हमेशा तैयार किया है। ये प्रेजेंटेशन भी कुछ ऐसी है, तो ये मान करके चलिएगा जो भी एक शब्द मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो पंकज गुप्ता सिर्फ माध्यम है, एक मीडियम है, नथिंग एल्स। तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसका नाम है द फ्यूचर। और अगर आपको लगता है जो भी अभी साइमन सर ने मेरे बारे में बताया, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, अगर आपको लगता है कि इस एक्सपीरियंस के साथ मैं वाकई पंकज गुप्ता आपके साथ एक भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता हूं एक्चुअली, तो आप यहाँ बैठने के लिए मजेदार तरीके से बैठिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार ये कम है, ये अनुभव कम है, ये बातें बताने वाला व्यक्ति नहीं लगता, तो आप अपना 1 घंटा खराब करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत लाजवाब व्यक्ति जिनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स आपका एक स्टेटमेंट है, इन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट क्योंकि कोई भी हम में से कभी भी अपने माँ बाप का चुनाव नहीं कर सकता है। ओके, तो आप अगर गरीब पैदा हुए हैं तो कोई बड़ी गलती नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन गलती तब है अगर आप गरीब ही मरते हैं। तो आपकी पैदाइश कहां पर हुई है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप गरीब मरे तो सिर्फ और सिर्फ आप ही गलत ठहराए जाएंगे। और मुझे ध्यान है दैनिक जागरण करके हमारा एक लोकल न्यूज़पेपर आता है, उन्होंने एक बार एक बहुत बढ़िया बात लिखी थी, उनका एक एडवर्टीजमेंट था, उस एडवर्टीजमेंट को मुझे हमेशा ध्यान रखता हूं मैं हमेशा। उन्होंने एक जगह एक बात लिखी थी कि आपको विरासत में क्या मिला इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप विरासत में क्या छोड़ करके जाने वाले हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए उस फ्यूचर की बातें करेंगे। एक, क्या हम अपने भविष्य को अच्छा करके अपने आप को सक्सेसफुल व्यक्ति, मैं अमीर और गरीब का मतलब भी वो नहीं कहना चाहता, यहाँ पर जो भी बिल गेट्स साहब ने बोला मेरा मतलब है सक्सेसफुल व्यक्ति अमीर भी होता है, एक्चुअली वेल्दी होता है। तो आप विरासत में क्या छोड़ करके जाने वाले हैं, इन 2 बातों को आज हम करने वाले हैं। और मिलवाना चाहूंगा एक बहुत लाजवाब शख्सियत से जो एक्चुअली वन ऑफ माई आइडियल्स, मिस्टर लेस ब्राउन। इनका एक स्टेटमेंट आपके समक्ष नजर आ रहा है।
इन्होंने एक जगह बोला था कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो बड़ा लक्ष्य रखते हैं और उसको मिस कर जाते हैं, बल्कि लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य छोटा होता है और वो उसको हिट भी कर देते हैं। मुझे नहीं पता इस मीटिंग में कितने लोग हैं आप में से, इस समय तो बिल्कुल कुछ नहीं देख सकता मैं, मुझे ये भी नहीं पता आप में से कौन एएस है, मुझे नहीं पता आप में से कौन सुपरवाइजर है, कौन असिस्टेंट मैनेजर है, या आप में से कौन यहाँ पर किस लेवल पर है, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन यस, मैं इस बात को जानता हूं कि आपने अगर छोटा लक्ष्य रख लिया तो आप उसे अगर हिट कर गए तो एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। यू आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स फेलियर। मिस्टर लेस ब्राउन कहते हैं कि बहुत से लोग बड़ा लक्ष्य रखते हैं और जब वो उसको रखते हैं तो ऑफ कोर्स उसको हिट करने की कोशिश करते हैं, वो मिस करते हैं, लेकिन लक्ष्य बड़ा है तो कम से कम उनकी मंजिल उनके लिए उतनी मुश्किल नहीं होगी जब वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपका लक्ष्य अगर छोटा आपने हिट कर दिया, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने गवर्नमेंट जॉब की है, मैंने करीब 28.5 वर्ष भारत सरकार के साथ नौकरियां की हैं अलग अलग विभागों में, और मैंने वहां पर देखा है कि एक बंदा क्लर्क तो उसका लक्ष्य छोटा था, क्लर्क बन जाऊं बस, लक्ष्य छोटा था, वो हिट कर गया, और उसके बाद वो बस पूरा का पूरा समझो राजा बाबू बना रहता है, वो कंफर्ट जोन का शिकार हो जाता है। तो चेक करना है आपको कि कहीं आपका लक्ष्य छोटा तो नहीं और आपने हिट तो नहीं कर दिया है, कहीं आप सुपरवाइजर को मान के तो नहीं कि बहुत बड़ा काम कर लिया, या मैनेजर होकर के बहुत बड़ा काम कर लिया। इस बिजनेस में आपको ध्यान रखना है, हर जो अचीव करने वाला लक्ष्य लोगों ने अचीव किया है वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर इस बिजनेस में ट्रिपल डायमंड है तो वो आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। और आज मेरी प्रेजेंटेशन में मैं आपके साथ, जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत सारी बातें करूंगा, अपने कागज और पेन तैयार रखिएगा। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं जानता हूं हम सब बहुत स्मार्ट है, मैं जानता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, लेकिन मैं जानता हूं इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। और लिख लीजिएगा मेरी बात को, मेरा 20 वर्ष का अनुभव है ये। जिस व्यक्ति ने स्क्रीनशॉट लिए हैं, जिस व्यक्ति ने फोटोज खींचे हैं, उस व्यक्ति ने कभी उनको पलट के नहीं देखा है। आप याद कर लीजिएगा कि आपने उन स्क्रीनशॉट्स को, उन फोटोज को कभी पलट के देखा है। मेरे गुरु एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि बेटा लिखने का फायदा क्या वो समझ लो। जिस समय आप लिखते हो तो क्या हुआ कि एक जो टीचर है, जो स्पीकर है, वो बोल रहा है, आपके दिमाग में जा रहा है, आपको जो चीज समझ में आ रही है वो आप अपने भाषा में लिख रहे हो, अपने शब्दों में लिख रहे हो। तो आपके दिमाग ने पहले सुना और फिर अपने अनुसार लिखा, तो आपने 2 बार एक काम कर लिया। आप यकीन से मानिएगा, जिंदगी में कभी भी उस लिखे हुए नोट को आप पढ़ोगे, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट रहेगा, स्क्रीनशॉट लेना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप पूरी प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन अगर आप वाकई अपने भविष्य को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो लिखिएगा जरूर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। एक बहुत बड़ी शख्सियत है पूरी दुनिया में, इस समय 4थे नंबर पर वो है, 4th नंबर पर आते हैं। उनकी एक बात जो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले एक सवाल आता है कि मुझे काम करना कब बंद कर देना चाहिए। हम सब पूछते हैं, सोचते हैं आपस में कि मुझे कौन सी अवस्था में काम बंद कर देना चाहिए। तो इसके लिए उन साहब ने बोला था एक स्टेटमेंट, मोर मनी एंड मोर टाइम इज द की टू सक्सेस। कि जितना ज्यादा समय आपके पास होगा और जितना ज्यादा पैसा आपके पास होगा, अगर ये दोनों चीजें बहुत हैं तो आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला, इनका नाम है मिस्टर वॉरेन बफे। वॉरेन बफे साहब ने एक बात बोली थी, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफे साहब कहते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा काम नहीं मिलता जिसमें कि आप सोते हुए भी पैसा कमाओ, तो इसका मतलब आप अपने अंत समय तक काम ही काम करते रहोगे। यानी अंत समय तक आपको सिर्फ काम करना पड़ेगा ताकि आपके पास पैसा आता रहे। तो हम आपको जो बिजनेस बता रहे हैं, ये व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें आपका सोते समय भी पैसा आता है। जब आप रॉयल्टी इनकम की तरफ बढ़ते हैं, और एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोग इस समय फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हैं, जो जब सोते हैं तब भी उनका बिजनेस बढ़ रहा होता है, राइट? क्योंकि आज आप देखिए, जितने भी अचीवर्स को आप जानते हैं, उनका बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं है, उनका बिजनेस अब्रॉड भी फैला हुआ है। साइमन सर की मैं बात करूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 60 से 70 या मे भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। तो जब ये सो रहे होते हैं तो बाकी देशों में लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हर जगह टाइम गैप है, उस टाइम गैप की वजह से लोग काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ इतना, बल्कि आप गौर से देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फीचर है कि आप काम कर रहे हो तो अपने लिए काम करो, लेकिन यहाँ पर जो टीम, जो नेटवर्क काम करता है, वो बेसिकली आपके साथ काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर हर वक्त पैसा कमाते हैं। तो समझने की जरूरत है कि क्या हम रैट रेस का हिस्सा हैं या हम वाकई अपने लिए एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिकमेंड करूंगा, आप अपने कागज पेन निकालिए, थोड़ा सा गेम खेलते हैं। और मैं जानता हूं एक ऐसा गेम है जिसको शायद आप में से कुछ लोगों ने पहले खेला हुआ होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस गेम के दौरान मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, और प्रश्न पूछने के पश्चात मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सही जवाब देंगे।
वही लोग जवाब दें जिन्होंने इस गेम को फर्स्ट टाइम खेला है। तो गेम क्या है वो समझते हैं। आपको 9 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। इन 9 डॉट्स को करना क्या है, आपको इन 9 डॉट्स को 4 लाइंस में मिलाना है। 4 लाइंस खींचेंगे आप और इन 4 लाइंस में आपके 9 के 9 डॉट्स को कवर कर लेना है। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यस, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिंट है जो मैं बाद में आपको दूंगा। आप कोशिश करके देखिए, ये 4 लाइनों में आपको लेना है और आपका पेन नहीं उठना है। कंडीशन नंबर 1, कागज वाले को कुछ मोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, इन 4 लाइंस में इनको मिला देना है। कोशिश करके देखिए। मीनवाइल मैं देखता हूं कि क्या मैं पार्टिसिपेंट्स को मिल सकता हूं। ओह माय गॉड, ये तो पूरी स्क्रीन हो गई, कोई बात नहीं है। Yeah, I can see them. No worry. Okay. जो भी कर लें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज रेज योर हैंड, ताकि मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा साइमन सर से। चलिए, अब तो मैं भी को होस्ट हूं तो शायद मैं भी अनम्यूट कर पाऊंगा आपको। कंडीशन समझ लीजिए, 4 लाइनों में ही आपको रहना है, 4 के बाद 5वीं ना हो। और अगर आपने पहले इसको कभी किया है तो मैं आपको बाद में बुलाऊंगा, अभी पहले उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने इसको पहले नहीं किया है। ओके, आदर्श, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, प्लीज लेट मी नो। आदर्श, मिस्टर आदर्श, आप अनम्यूट कीजिए अपने पास से। मिस्टर आदर्श, आपको अनम्यूट करना होगा अपने पास से। ओके, हाय डॉक्टर नूरिता, काफी समय बाद बात कर रहा हूं आपसे। आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने पास से। Thank you, sir. Very nice to see you after a long time, sir. My pleasure. सर मैंने कर ली, लेकिन मैंने हाथ मैं बताऊंगी नहीं। Okay, अनुरिता जी, मैं ये पूछ रहा था कि have you done this before? If yes, then we should just stay for some time because no, sir. I have just taken the help of the lecture what I have attended 10 years before, and into that I think ये exercise था, but yeah, so it's of no, because मैं चाहता हूँ कि हम जो मैनेजर्स एंड अबव हैं वो तो फिर भी हाथ ना उठाएं, बल्कि मेरा मौका ये रहेगा कि जो एएस एंड सुपरवाइजर वो करें तो मजा आएगा और राइट। ओके, मनीष कुमार, sir, for the opportunity. Thank you. So nice of you. मनीष जी, मनीष कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज कीजिए अपने। मनीष जी चले गए अचानक से। ओके, भाविका जी, yes, या प्लीज बताइए। सर पहले 3 लाइन, ये वाली ऊपर वाली? हाँ, यस। लेफ्ट से राइट? नहीं नहीं, सीधी, यहाँ से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ओके, 1, फिर वहीं से वर्टिकली। वर्टिकल बोले तो दिस लास्ट लाइन, हाँ हाँ, ये हो गया 2। थोड़ा सा बाहर की साइड से लेके हम कर सकते हैं सर इसको। हाँ, लाइन हम खींचेंगे, जो हम लाइन खींचेंगे पहली 2 वाली, पहली वो भी सॉरी पहली सीधी और दूसरी वर्टिकली, तो दोनों लाइन थोड़ी बाहर से खींचेंगे और फिर हम ये जो सेकंड वाले जो डॉट्स है उसको अटैच करेंगे और फिर उसको फिर क्या बोलेंगे, क्रॉस में हम लाइन खींचेंगे। इसको डायगोनल, वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल। हाँ सॉरी सर, ऊपर से नीचे आए वर्टिकल। हाँ हाँ, अब हमें डायगोनल जाना है। यस यस, ये 2 हो गई। हाँ, अब ये लास्ट वाली लाइन, लास्ट 3 डॉट्स है वो, ये वाली हो गई। नहीं नहीं, ये नहीं सर, ये नहीं, लास्ट वाली, यही तो है लास्ट। नहीं नहीं, वहां से नहीं सर, यहाँ से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहां से। अच्छा, वहां से ये लेना है। ओके, ये ले लिया हमने 3। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली सर क्या मैं कर सकती हूँ सर? नहीं, मैं वही तो मैं अपने आप से कर सकती हूँ। 1, मैं ऐसे बता रहा हूँ, 1 2 हाँ। 3। हेलो सर। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, आपने मुझे बोला 1 हाँ, 2
and this 3. जहाँ पे सर वहाँ जहाँ से हम 1 स्टार्ट करते हैं और 2 जहाँ पे खत्म होता है वहीं से दूसरी लाइन खींचते हैं। ये ना यहाँ से तो कहाँ खींचना है? नहीं नहीं वहां से नहीं सर, वहां से नहीं। आप पेन उठाने वाली है, क्या करने वाली हैं? यस सर, आप मेरे को बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन आप मेरे को बताओ तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कैसे कर सकते हैं। अपना वीडियो ऑन कीजिए, मैंने आपको परमिशन दिया है, मैं आपको देख सकता हूँ। ओके सर, ओके। मैं आपको देख नहीं सकता अभी। सर मेरा वीडियो ऑन ही है। नहीं, आपका तो वीडियो ऑन है पर मैं देख नहीं सकता आपको, आई एम सॉरी। मैडम जो आपने ड्रॉ किया है वो दिखाओ ना स्क्रीन पे। सर एक्चुअली मेरे को यहाँ से नहीं, मैं भी नहीं हूँ, तो सर मेरे को ये आपके पास जो बुक, आपने जो बुक में ड्राइंग किया है ना, उसको दिखाओ ऐसा स्क्रीन पे, तो देख सकते हैं ना हम लोग। अच्छा, एक मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। और मेरे को नहीं दिखेगा साइमन सर, क्योंकि मेरा स्क्रीन, मुझे फिर वापस जाना होगा। कोई नहीं, अपन वापस जाते हैं, या आप दिखाइए। आई विल शेयर द स्क्रीन लेटर ऑन। आपने बना लिया है, आपने जो किया था भाविका जी? हाँ यस सर, बना लिया है। दिखाइए ना आप। हाँ सर। भाविका जी समय बहुत ज्यादा। यस सर, यस, 1 मिनट सर, 1 मिनट। In the meantime, if somebody else is ready. या सोनू आप बताएंगे? पेपर पे ड्रॉ करके दिखाओ। सोनू, मैंने आपको भी अनम्यूट किया हुआ है। यस सर, हम ये दोबारा एक बार आप बताए थे, याद है मुझे सर। सॉरी। हाँ सोनू, आपका डिजाइन दिखाओ ना, जो ड्राइंग किया वो दिखाओ। दिखा रहा है सर। कोई क्लास अटेंड की होगी शायद से बोल रहा है। भाविका जी दिखाइए आप, भाविका जी आप दिखाइए। यस सर, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। Wait, I'll try to pin a video, 1 minute. भाविका जी आप पहली बार कर रही हैं इसको, ऑनेस्टली बताइएगा। यस सर, यस। ग्रेट। क्या सोच के आपने ये किया है? कैसे किया जरा बताइए। सर पहले तो मैंने ये लाइन खींची थी, लेकिन ये शॉर्ट हो रही थी, तो ये दोनों नहीं अटैच हो पा रहे थे, तो फिर मैंने ये बढ़ा ली और फिर यहाँ से भी बढ़ाया, तो ये दोनों हो गई, तो ये अपने आप ही हो गया। मुझे बढ़ाया समझ नहीं आना, कहाँ से बढ़ाया आपने? मुझे लग रहा है आपने पेन उठाया नहीं पर। ये 3 डॉट है। हाँ। यहाँ से मैंने ये लाइन खींची, हाँ। तो यहाँ से शॉर्ट हो रही थी, तो फिर सोचा ये दोनों डॉट तो रह जाएंगे, यहाँ से खींचेंगे तो। हाँ। तो अपने को तो ये भी कवर करना है ना। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये लाइन थोड़ी बड़ी कर दे। सेम वैसे यहाँ पे हुआ, मैंने जो रूल्स यहाँ पे फॉलो किया सेम यहीं पे फॉलो किया, और फिर ये दोनों अटैच हो गए। आपने कहीं पर पेन उठाया? हाँ उठाया सर। पेन नहीं उठाना था आपको, वही तो पॉइंट था। ओके सर। आपने अगर इसको पहली बार किया तो आई शुड रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको एक बुक जरूर गिफ्ट करता। तो मेरी तरफ से जब भी कभी आप जीवन में मुलाकात होगी, एक बुक, अच्छी बुक आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट जरूर पेंडिंग में रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बिकॉज आई एम सॉरी जेंटलमैन एवरीवन एक्चुअली हियर, बिकॉज हम लोगों ने काफी टाइम यहाँ पर स्पेंड हो गया हमारा। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है साइमन सर? या दिख रहा है, आई कैन सी योर स्क्रीन। ओके दोस्तों, ये जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैनेजमेंट की। एक्चुअली क्या होता है कि आप में से ज्यादातर लोग स्टक कर गए होंगे एक जगह पर। वो स्टक कहाँ कर जाते हैं हम ज्यादातर केसेस में, कि हम बेसिकली इस स्क्रीन पे सिर्फ एक ही काम कर रहे होते हैं। और वो क्या कर रहे होते हैं कि हम ऐसे 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 4 लाइन पूरी हो गई, फिर हम कोशिश करते हैं 1 2 3 4, ये वाला डॉट रह गया। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उसी दायरे के बीच में रहते हैं जो समस्या हमें दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आगे बढ़ने से पहले। हम ज्यादातर जिस समस्या में उलझे होते हैं, हम सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। या जो हिंट है वो क्या है? ऑलवेज व्हेनेवर यू आर इन ए प्रॉब्लम, you need to solve a problem and you are feeling yourself incapable of solving that problem, think out of the box.
दायरे से बाहर सोचना है। ओके, अब दायरे से बाहर सोचना कैसे है? जैसा मैंने आपसे कहा, भाविका जी ने बेशक पेन उठाया लेकिन उनके प्रयास में दम था। भाविका जी, मैं बताना चाहूंगा, आपने जो एक बड़ी बढ़िया बात बोली, मैं आपको इस बात का भी एक कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। ये जो मैंने स्लाइड बनाई है, इसको करीब मैं पिछले 20 साल में 2 बार दिखा चुका लोगों को। एंड यू आर द फर्स्ट ऑडियंस, अगर ऑनेस्टी के साथ आपने बोला, प्लीज मुझे माफ करिएगा शब्द के लिए, अगर आपने वाकई इसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करके किया तो यू आर द फर्स्ट ऑडियंस जिसने फर्स्ट टाइम में एक बहुत बड़ी बात बोली कि मुझे नजर आया कि यहां से आगे कहीं जाना पड़ेगा मेरे को। इट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। व्हेनेवर यू आर इन प्रॉब्लम, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम नजर आता है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। नाउ यहां पर देखते हैं क्या है। हमने पहली लाइन ली, ये देखिए पहली लाइन जाती है आपके सामने। अब हम दूसरी लाइन को क्या कर रहे हैं? दूसरी लाइन को हमने यहाँ पर रोक करके यहाँ पर लाया हूँ, राइट? जब हम यहाँ पर लाए तो हमने तीसरी लाइन को इन दोनों को कवर करते हुए लिया और ये हमारी 4th लाइन है। तो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस। तो आप समझे कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। जैसे कोरोना काल चला, अभी मैं चला इसलिए बोल रहा हूँ, सॉरी, आप लोग तो वाकई उसमें भी फंसे हुए हैं महाराष्ट्र में। कोरोना काल जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है या हुआ, उसमें अगर आप गौर से देखोगे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आ गए। बहुत सारे लोगों को लगा यार पता नहीं कैसे काम होगा, और उन्होंने अपने आप को घर में उसी दायरे में बैठ करके सोचना शुरू कर दिया। उसी दायरे में कोशिश कर रहे हैं कैसे करें यार, अब तो होगा नहीं, अब तो नेटवर्किंग खत्म, अब तो फॉरएवर खत्म, अब तो हमारा धंधा चौपट, राइट? लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों ने भी क्या किया, ऐसी कंडीशंस में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के काम करना शुरू किया। जूम मीटिंग्स की, इंस्टा पर आए, फेसबुक पर आए, ट्विटर पर आए, लिंक्डइन पर आए, और उन्होंने अपने बिजनेस को इतना एक्सपेंड किया कि चमत्कार कर दिए, राइट? जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वी शुड नॉट कंसिडर आवरसेल्फ कन्फाइंड टू ए बॉक्स। वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एंड जब हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, बिलीव मी, आपके पास दायरा बढ़ गया, आपके पास लिमिटेशन से आप बाहर आ गए, तो आपके लिए आसानी से रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट? तो ऑलवेज व्हेनेवर यू आर इन ए ट्रबल, इन अ problematical condition, think out of the box. Make this a tagline for yourself. Whenever I'm in a trouble, whenever I'm facing any challenge, I need to think out of the box. Make it somewhere, write it down somewhere, please. Okay. Now, सवाल आता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? और ये सवाल आप में से नए साथियों से तो मेरे ख्याल से लागू नहीं होता, जो अभी शायद यहाँ पर हमारे यहाँ अभी प्रेफर्ड कस्टमर्स हैं। लेकिन यस, अगर आप AS एंड अबव हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आपसे मेरा पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ पर क्यों आए? जब आपने फॉरएवर बिजनेस देखा तो देखने के बाद कोई तो एक पानी का बॉटल है, कोई तो एक वजह थी जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में थे। वो वजह क्या क्या थी जरा देखिए। हो सकता है आप अच्छी हेल्थ पाने के लिए आए हो, या ये भी हो सकता है आप अच्छी वेल्थ पाने के लिए आए हो। ये भी हो सकता है आपको टाइम का लगता हो कि यार मेरे पास टाइम नहीं मिलता, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, हर वक्त काम ही काम रहता है, या फिर आराम करने को मौका नहीं मिलता, मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हूँ। या हो सकता है फ्रीडम की तलाश में आए हो, यार ये बॉस की चक्कर मगर से दिमाग खराब रहता है, इसकी वजह से मेरे को बड़ा दिक्कत होती है, तो नाउ आई शुड एक्चुअली वर्क समथिंग फॉर माई फ्रीडम। और आपको जब फॉरएवर का प्लान नजर आया, आप उस फ्रीडम के लिए फॉरएवर के साथ ज्वाइन किए। या ये भी हो सकता है कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार घूमने फिरने जाते हो देश और विदेश, और आपको लगा यार मैं कब जाऊंगा, तो आप इस वजह से सोच करके फॉरएवर में आए हो। या ये भी हो सकता है आपने देखा हो बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज होते हैं जो ज्यादा स्टार्स होते हैं, ओके, चाहे वो फिल्म स्टार्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, ओके, तो आप उनको रिकॉग्नाइज होते हुए देखते हो और आपको लगता है यार मेरा नंबर कब आएगा भगवान। तो जब आपको फॉरएवर का बिजनेस मिला तो आपको समझ में आया कि यार वो जो मैं सोचा करता था रिकॉग्निशन, वो मुझे यहाँ मिल जाएगी। आपका वाई क्या था जब आप इस बिजनेस में आए थे? क्या वो आज आपको याद है? And are you serious for that? Are you really serious for your why when you joined this business? Is it still there in your mind? Do you still recall it? And if you recall it, then what you have done by the time we are now sitting here? अभी तक हमने क्या किया है, right? और मेरा इस प्रेजेंटेशन के एंड तक, और मैं दावा करता हूं लाइफ में आप जितने भी लोग इस समय रूम में बैठे हैं, मैं दावा करता हूं शायद कोई एक व्यक्ति भी ऐसा मुझसे नहीं कह सकता कि जो मिरर में आज आपको दिखाने वाला हूं एंड में आते आते वो आपको जिंदगी में किसी और ने दिखाया। मेरा दावा है, क्योंकि ये मेरी 5th प्रेजेंटेशन है पूरी इंडिया में जो मैं साइमन सर के साथ, इस टीम के साथ कर रहा हूँ। और इस प्रेजेंटेशन का जो आखिरी हिस्सा है पड़ाव, यकीन से बता सकता हूँ पड़ाव में एक आईना है, एक मिरर है आपके लिए, और वो मिरर मैं दावा करता हूँ आपकी जिंदगी में पहली बार आने वाला है। लेकिन उस मिरर की शुरुआत यहाँ से होती है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्या वाकई आपको याद है आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया था? You really remember it? देखिए
और उसको दिमाग में रख के इस बिजनेस को कीजिए, क्योंकि आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेटेस्ट ट्रेंड क्या बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो भी जान लेते हैं हम। आज की डेट में कितना बड़ा भविष्य है। पहली बात समझिए नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। मेरे अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ रिप्लेसमेंट है ट्रेडिशनल बिजनेस का, दैट इज इट। ट्रेडिशनल बिजनेस में देखिए, क्या मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के बीच में नेटवर्क नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एडवर्टाइजमेंट, क्या ये मैन्युफैक्चरर का नेटवर्क नहीं होते? ये नेटवर्क का हिस्सा ही होते हैं। बस अंतर क्या होता है, यहाँ पर अमीर और अमीर बनता चला जाता है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली सिर्फ क्या किया गया, इस मिडिलमैन चैनल को, जो नेटवर्क का हिस्सा था मैन्युफैक्चरर का, उसको रिप्लेस किया गया आपसे, इंडिविजुअली आपसे, और आपको मौका दिया गया आप जितना चाहे उतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करो, जितना चाहे उतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करो, टोटली योर विजडम। आप जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। और आपको पता होगा, ये आंकड़े आपने देखे हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज आपको सपोर्ट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर रोजाना तो नहीं कह सकता, लेकिन महीने में कम से कम 2 से 3 मीटिंग्स में हमारे कंज्यूमर अफेयर मिस्टर रामविलास पासवान या अनुराग साहब ठाकुर सिंह जी, ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं लेक्चर दे रहे होते हैं, उनको भविष्य नजर है, इसीलिए भारत से बजट निकाला। कभी कभी लोग कहते हैं यार ये सर्टिफिकेट ही तो है, पंकज, सर्टिफिकेट। पंकज आपका वॉइस थोड़ा क्रैक हो रहा है, वॉइस इज स्लाइटली is it clear now? Yeah, much better. I think the voice is a little cracking. Well, this could be because of network issues, but I am not sure because my signals are perfectly here, so I am not sure for that. Okay, no problem. Thank you. Single device for my mobile, but let me see if any other mobile is connected to it. No problem. Thank you. Is that clear now, sir? Yeah, much better. Thank you, sir. Okay. So आपको देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कहती है कि आप देखो, इस बिजनेस को समझो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने 23 पेज का गाइडलाइन जारी किया हुआ है, और ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है। आप में से जो नए साथी हैं, जो जिनको विश्वास नहीं मेरी बात पे, आप जाइए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पे, वहां पर ही आपको 26 अक्टूबर 2016 की गाइडलाइंस मिलेंगी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और बिल्कुल क्लियर बताया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है ऐसा बिजनेस जहां पर की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल नेटवर्क बढ़ा करके की जाती है, दैट इज इट। और साथ ही उसमें पिरामिड स्कीम के बारे में बताया गया है कि पिरामिड स्कीम वो होती है जहां पर की लोगों का सही मायने बुद्धू बना करके पैसा ऐंठने का काम किया जाता है। शब्द अलग है, शब्द थोड़ा डायरेक्ट है, वहां पर थोड़ा सा बुने हुए शब्द है। ओके, देन थोड़ा ग्लोबली देखते हैं और इंडिया में इस मार्केट की ग्रोथ को समझते हैं। दुनिया में आंकड़े बताते हैं 11.84 करोड़ लोग, 120 मिलियन टोटल पॉपुलेशन पूरी दुनिया में इंगेज्ड है एज ए नेटवर्क मार्केटिंग। इंडिया में भी कम लोग नहीं है, 7 मिलियन 70 लाख लोग ऑलरेडी इंगेज्ड हैं। टर्नओवर की बात करें तो इस पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री की वर्थ है 193 बिलियन डॉलर्स की। इंडियन करेंसी में 13.5 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज बताया था अभी कुछ दिन पहले। एक इंडस्ट्री है साहब 13.5 लाख करोड़ की, और इंडिया में कुल 13,000 करोड़ की। इसे कुल में क्यों कह रहा हूं, अदरवाइज सामने वाले को बताने के लिए 13,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन आप सोचिए पूरी दुनिया के टर्नओवर का 1% भी हमारा शेयर नहीं, जबकि पूरी दुनिया की 17%, 17% पॉपुलेशन हमारे पास है। तो कितना बड़ा फ्यूचर है आपके लिए, आप सोच के चलिए। आज ये इंडस्ट्री टैक्स देती है, हर चीज का टैक्स देती है। ग्लोबल आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन इंडिया में इस इंडस्ट्री ने 2500 करोड़ रुपीस का टैक्स लास्ट ईयर दिया है भारत सरकार को। ये आंकड़े कहां से आए, आपके नीचे सोर्स दिया हुआ है, WFDSA। आप गूगल पे जाइए, WFDSA की साइट पे जाइए, और WFDSA की साइट पर आपको ग्लोबल आंकड़े मिल जाएंगे। और इंडिया के आंकड़े जानने के लिए IDSA की वेबसाइट पर जाइए, और IDSA की वेबसाइट पर आपको एनुअल सर्वे मिल जाएगा। कभी कभी लोग हमसे कहते हैं साहब आपकी कंपनी IDSA में तो एनरोल्ड नहीं है। अरे भैया हम उसके बाप से एनरोल्ड है, DSA, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो पूरी दुनिया को देखता है, हम उसके मेंबर हैं, राइट। आगे बात करते हैं इंडिया में इसका फ्यूचर क्यों बड़ा है, वो भी समझिए। ये बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान यंगेस्ट कंट्री है, करीब 50% पॉपुलेशन इंडिया की वो है जो अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज है इस समय, राइट। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात के लिए। अब देखिए मजेदार बात क्या है, जब आपके देश में युवा ज्यादा होगा, यूथ ज्यादा होगा, तो एनर्जी भरपूर होगी। आज आप अपने युवा को भेज दो बॉर्डर पे, दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी ताकत को हरा देंगे। लेकिन एक समस्या क्या है, यूथ ज्यादा होगा तो उसको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, और दुर्भाग्य से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत तेजी से इसी वजह से बढ़ रही है।
एक आंकड़े देता हूं मैं आपको फिक्की के अनुसार, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर एंड कॉमर्स ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इसके अनुसार हिंदुस्तान में वर्ष 2025 तक 2025 तक 1.8 करोड़ लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलने जा रहा है। और ये फिगर्स फिक्की ने 2018 में दी थी। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको आगे बताऊंगा। और बोला गया है फिक्की की इस रिपोर्ट में कि 60% रोल जो होगा वो वुमेन का होगा। जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। और ये मैं नहीं कह रहा, फिक्की बोल रही है कि जो पीरियड चल रहा है ये वाला, ये गोल्डन एरा है नेटवर्क मार्केटिंग का। और फिक्की की इसी रिपोर्ट में बोला गया कि आने वाले 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का साइज इंडिया में 64,500 करोड़ होने जा रहा है। अभी कितना है? 13,000 करोड़। कितना हो जाएगा? 5 करोड़। सोचिए 5 टाइम्स होने जा रहा है। लेकिन ये फिगर कब की है? मैं आपको बता रहा था 2018 की। लॉकडाउन, कोरोना नहीं था। यकीन से बता सकता हूं जो इस समय अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इस समय ऑलमोस्ट आपको पता होगा हर 5 में से 2 लोगों का जॉब जा चुका है। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि ये आंकड़े बदलने वाले हैं। ये 1.8 करोड़ जो आपको दिखाई दे रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग हैज द पोटेंशियल टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 3 करोड़ इन नेक्स्ट 5 years. And this figure of 64,500 crores, this is also going to be revised to 1 lakh crores. With you or without you. This is your decision actually, my dear friends. Either you decide to continue with us or you decide देख लेंगे 5 साल बाद क्या होता है। ये तो होने वाला है, ये भविष्य है। और इस भविष्य को बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने, बड़े बड़े बौद्धिक लोगों ने इसके लिए ऑलरेडी भविष्यवाणी कर दी है। ओके, आगे बात करते हैं। समय आया आपको थिंकिंग को एक्सपैंड करने का। जब तक हमारा थिंकिंग प्रोसेस एक्सपैंड नहीं होगा, जब तक कि हम सोच को बड़ा नहीं करेंगे, ये कहा गया है कि छोटी सोच और पैर में मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देते। तो हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा और उसी के लिए हम बातें करना चाहते हैं आज आपसे। आपके अनुसार हिंदुस्तान में ऐसे कितने लोग होंगे जो 10 लाख 10 लाख रुपीज एनम एक साल में कमाते होंगे? कितने %? अगर आप इनकम टैक्स के आंकड़ों पर जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि इंडिया में कुल करीब 72 लाख लोग ITR भरते हैं, 72 लाख, तो ये तो लेस देन 1% हो गया। ओके, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे जानकारी में आते हैं जो टैक्स नहीं भरते, लेकिन फिर भी वो 10 लाख रुपए सालाना कमाते होंगे। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, एक रफ आइडिया है कि करीब करीब ऐसे 5% से कम लोग होंगे, मतलब अंडर 5% लोग हैं जो कि 10 लाख रुपए से आसपास कमा रहे हैं साल में। अंडर 5%, राइट, नॉट मोर देन 5%। ओके, अब जरा समझते हैं ऐसा क्यों है, वो भी समझिएगा। अब किन किन को ये 10 लाख रुपए सालाना कमाने का मौका मिलता है वो भी समझ लेते हैं। इनमें से 5 में से एक व्यक्ति होता है इसको इनहेरिटेड, यानी कि उसके 4 फादर्स छोड़ के गए हैं, इसलिए वो 10 लाख रुपए सालाना उससे ज्यादा कमा रहा है। इनमें से 5 में से 3 लोग ऐसे हैं जो बिजनेस ओनर हैं, और इनमें से एक व्यक्ति शायद ऐसा है जो जॉब कर रहा है। राइट, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सबसे ज्यादा कौन है? बिजनेस ओनर्स। इस बात को आप भी जानते हैं, बिजनेस ओनर्स ही क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर्विस क्लास अपने रिटर्न भरता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, लेकिन बिजनेस ओनर्स कहीं ना कहीं बटा मार देते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसा क्यों है कि इतने कम लोग 10 लाख रुपए से एक सालाना के आसपास कमाते हैं? ऐसा क्यों है? कुछ कारण है जो मैंने ढूंढे हैं। पहला है निगेटिव माइंडसेट। हम लोग एक निगेटिव माइंडसेट के साथ बढ़ रहे हैं अपने जीवन चक्र में। हम धीरे 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 अपने आसपास निगेटिविटीज को देखते हैं, हमारा माइंडसेट निगेटिव हो चुका है। हम एक्चुअली हर चीज में निगेटिव ढूंढते हैं। हम लोगों को लगता है नहीं यार ये नहीं हो सकता। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया। क्या किया उन्होंने? एक अखबार में एक एडवर्टीजमेंट निकाला 2 अलग अलग पोस्ट के लिए, बिल्कुल ठीक है जैसे मेरे आपको गैप दिखाई दे रहा है, एक ऊपर और एक ठीक नीचे। पहले एड में लिखा हमें हमारी कंपनी के लिए वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, हमें हमारी कंपनी के लिए वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और सैलरी 5 लाख रुपए महीना। राइट, नीचे ठीक उसी के ऐड निकाला हमें हमारी कंपनी के लिए क्लर्क चाहिए, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, सैलरी 20,000 रुपए महीना। कैन यू बिलीव? नीचे वाली इस क्लर्क की पोस्ट के लिए 20,000 लोगों ने अप्लाई किया और ऊपर वाली पोस्ट के लिए 20 लोगों ने अप्लाई किया। जरा सोच के बताइए क्या अंतर था? वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, क्लर्क चाहिए,
क्वालिफिकेशन तो सेम थी ना, लेकिन निगेटिव माइंडसेट, नहीं यार कुछ लोचा होगा, नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं यार ये वाली नहीं भरनी चाहिए, इसमें तो हमें पता हम कर ही नहीं पाएंगे, नहीं यार हो ही नहीं सकता रॉल की 10 करोड़ का चेक ले ले, कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो उसने इधर उधर करा होगा, हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में सूरज सिन्हा 3.25 करोड़ का चेक ले लें, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। निगेटिव माइंडसेट, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ सैलरी। आप गौर से देखेंगे हिंदुस्तान में 10 लाख रुपए की सैलरी की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सैलरी कितना कमजोर है हमारा। मैंने 28.5 years भारत सरकार के साथ नौकरियां की और जो मेरी आखिरी सैलरी थी दैट वाज 82,000 रुपीज अ मंथ, राइट। मैंने 9,86,000 का मेरा लास्ट फॉर्म 16 था आफ्टर 28.5 लॉन्ग इयर्स ऑफ सर्विंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ सैलरी है उसकी वजह से भी ऐसा है कि 10 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों का नंबर कम है। तीसरा, because many of us don't want to come out of our comfort zone। मुझे माफ करिएगा, मैंने एक किताब में पढ़ा था मनुष्य स्वभाव से आलसी होता है। A human being is lazy by nature, right? अब वो लेजीनेस क्या होती है कि जहां हमें अपने जीवन में कुछ लग गया हाथ तो हम उसके बाद कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ओके, मैनेजर बने कंफर्ट जोन में चले गए, अब तो हो गया भाई, राइट। बंदे का जॉब लगा, अब तो हो गया भाई, वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। माने जब तक हमारा प्रोग्रेसिव माइंड नहीं होगा, जहां पर है वहां पर हमें शांति मिल गई तो इसका मतलब कंफर्ट जोन में आ गया। अगर हम वहां पर अशांत हैं, अगर हम वहां पर अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब वी आर नॉट इन कंफर्ट जोन। यू नो, एक वंस अगेन एक सर्वे हुआ। सर्वे क्या हुआ कि एक मेंढक लिया गया, ओके, और मेंढक को क्या किया गया, बिल्कुल बॉइल्ड वाटर था, उस बॉइल्ड वाटर में डाला गया, जैसे ही डाला मेंढक उछल के बाहर भाग गया। ओके, अभी क्या किया गया, उसी मेंढक को एक बड़े बर्तन में लिया और ल्यूक वार्म वाटर में उस मेंढक को डाल दिया, उस बर्तन को रख के, बर्तन में डाल के। अब वो मेंढक आराम से सांप लेटे हुए ना ऐसे जाकर के आराम से लेट गया। नीचे से आग जला दी गई, ओके, और उस आग को धीरे धीरे तेज किया गया, धीरे धीरे वो पानी गर्म हुआ, धीरे धीरे वो बॉयल हुआ और वो मेंढक वहां मर गया। Check it with yourself, my dear friends. Are you really in comfort zone? And if you are, then believe me, nothing else has to happen except the failure in life. So come out of that. That's how you can expand your thinking. That's how you can expand your business. That's how you can come with us to enjoy that future I've discussed already. Then many of us are actually waiting for some opportunity. कोई अच्छा सा बंदा मिल जाएगा तभी उसको ज्वाइन कराते हैं, तो हम सिर्फ ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा था और कुछ और चीज मौका आया, कुछ और चीजें कंपनी कर दे तो मैं तब काम करना शुरू करूंगा। माय डियर फ्रेंड, दिस इज फॉरएवर एंड बिलीव मी, अगर आप काम करते रहोगे तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, और अगर आप काम इस बात को सोच कर करोगे क्योंकि अच्छा लोग मिलेंगे तब मैं काम करूंगा तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर मिकलॉस बर्केस। मिस्टर मिकलॉस बर्केस बेसिकली फॉरएवर से बहुत लंबे समय से एसोसिएटेड है, मे बी सिंस 94-95। ओके, लगातार काम करते करते उन्होंने ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल को अचीव कर लिया था। और 2008 में एक साहब थे जो कि एक बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत बड़े लेवल पर थे, काफी बड़े लेवल पर, काफी सारे उनके नीचे बड़े बड़े अचीवर्स थे। तो उन साहब ने रशिया में बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू किया। जब रशिया में बिजनेस एक्सपेंड, फॉरएवर का नहीं, अपनी उस कंपनी में, जब उन्होंने रशिया में बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू किया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इस कंपनी ने उनको नोटिस दिया, वो नहीं माने, वो अपना ट्रक भर भर करके प्रोडक्ट्स ले जाने लगे वहां पर। तो अल्टीमेटली वन फाइन डे उस कंपनी ने उनको टर्मिनेट कर दिया। मिस्टर मिकलॉस बर्केस को ये बात पता चली, मिस्टर मिकलॉस बर्केस इस व्यक्ति से मिल करके प्लान दिखाया, जितना टाइम प्लान दिखाने में लगा होगा बस। बिलीव मी, दिस कपल जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं was the fastest diamond in the history of forever, fastest diamond, only 1 year they took, only 1 year। तो आप अपॉर्चुनिटी का इंतजार करोगे या आप काम करते रहोगे, और आपको यकीन मानो एक दिन कहीं ना कहीं आपको लोग मिलने शुरू होंगे, राइट। मैं आपको एक और एग्जांपल बताना चाहता हूं। आप प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानते होंगे, ओके। एक जो प्लेइंग कार्ड्स का पैक होता है दैट इज फॉर 52 कार्ड्स, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। अब उसमें 4 अलग अलग कलर्स के पत्ते होते हैं, ओके। मैं उसे मेरी भाषा बोलूंगा, एक को हम चिड़ी बोलते हैं, एक को ईंट बोलते हैं, और एक को हम हुक्म बोलते हैं, और एक को पान बोलते हैं। ये 4 अलग अलग कार्ड होते हैं, 13 ईच। अब उसमें एक एस होता है, ओके। अब मैं आपसे क्या करता हूँ, मैं उसको शफल करके आपको पूरा पैक देता हूँ और आपसे कहता हूँ बॉस इसमें से 4 एस निकालने हैं आपको। अब आप 4 एस निकालने की कोशिश करते हो, और लेकिन आप पहले 10 कार्ड्स निकाल लेते हो। व्हाट यू फाइंड, देयर इज नो एस आउट ऑफ इट, नो सिंगल एस।
ओके, क्या करोगे आप? बाकी 42 कार्ड्स को फेंक दोगे? नहीं, अभी आप और 15 कार्ड्स निकालते हो, 15 मोर कार्ड्स, राइट? एक भी एस नहीं निकला, you are left with only 27 cards in your hands. What will you do? Will you throw them away? No. Now what happens? Rest 17 cards also there is no ace you find. कोई एक का नहीं निकलता है, आपके हाथ में सिर्फ 10 कार्ड्स हैं. Will you throw these 10 cards? क्या फेंकोगे इन 10 पत्तों को? नहीं, because you know, your mind knows, चाहे कुछ भी हो जाए, 49, 58, 51, 52, इक्के निकलेंगे. हाँ या ना? माय डियर फ्रेंड, वो जो ऊपर वाला नहीं, इसे आप अलग अलग नाम से जानते हैं, भगवान, खुदा, वाहेगुरु, गॉड, वो बड़ा चमत्कारी है. उसने सारे के सारे लोग मुंबई में ही नहीं रख दिए एक जगह पर, डायमंड्स. उसने डायमंड्स को सब जगह फेंका है, सब जगह फेंका है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में. नाउ दिस इज यू टू फाइंड इट. आपको ढूंढना है उस डायमंड को. तो डोंट वेट फॉर सम अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू वर्क इट. And once you start working on it, believe me, you will find your diamonds. Okay? So आगे बढ़ते हैं. Yes, एक बहुत बड़ा कारण है, लोग 10 लाख रुपए नहीं कमा पाते, because उनके लिए देखा गया कि वो डरते हैं किस बात से? एक रिजेक्शन से और दूसरा चैलेंजेस से. उन्हें नो सुनने से डर लगता है. पता नहीं लोग क्या कहेंगे अगर मैं प्लान दिखाऊंगा, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, यार मना कर दे तो क्या होगा मेरे साथ, पता नहीं लोगों ने मुझसे प्रोडक्ट्स नहीं लिए तो मैं तो बड़ा हताश हो जाऊंगा. और चैलेंजेस वो बहुत डरते हैं, भैया मुझे ऐसा काम होगा इसमें चैलेंज हो. तो जो लोग चैलेंजेस से और रिजेक्शन से घबराते हैं, वो भी 10 लाख रुपए सालाना नहीं कमा पाते हैं. देन फाइनली आपसे एक प्रश्न है मेरा, अगर आपको 10 लाख रुपए सालाना मिल जाए तो आप उन्हें कहाँ खर्च करना पसंद करोगे? क्या आपने कोई लिस्ट बनाई है कि आज से अगर मुझे 1 साल बाद 10 लाख रुपए सालाना मिलेंगे तो मैं ये करूंगा? चलिए मैं आपकी थोड़ा हेल्प करता हूं. अगर आप फीमेल्स हैं तो हो सकता है आपका सबसे पहला लिखा हो, मुझे अपनी किचन को सबसे अच्छा करना है, क्योंकि किचन जो है फीमेल्स का दूसरा घर होती है. ओके, तो हो सकता है फीमेल सोचे मुझे अपनी किचन को मस्त बनाने का है. ओके, या हो सकता है फीमेल्स ये भी सोचे कि मुझे अपने परिवार के लिए जो मेरा वार्डरोब है, बच्चों का, परिवापति का या बाकी लोगों का, उसको और अच्छा करना है. ओके, अगर आप मेल्स हैं तो हो सकता है आप अच्छी कार के लिए सोच रहे हो, वेकेशंस पे जाने की सोचते हो, या एक अच्छा घर लेने की सोचते हो, और थोड़ा 10 लाख से ज्यादा गए तो हो सकता है आप सोचने लगेंगे कि चैरिटी की बातें भी करेंगे. ओके, द पॉइंट इज, ये सपने हैं आपके, ये पूरे कैसे होंगे? जरा देखते हैं, जरा उसको समझते हैं. हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इससे ज्यादा है वैसे तो, पर मैंने थोड़ा इजी करने के लिए कैलकुलेशंस आपके समक्ष रखी हैं. 1.25 बिलियन पीपल पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इस समय हम एज्यूम करते हैं. होने को 1.4 हो चुकी है, हम 1.25 पर थोड़ी कैलकुलेशन लेते हैं. अब इसमें से 20% लोग वो हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, जो इतने बुजुर्ग हैं कि वो शायद फॉरएवर नहीं करेंगे, वो हमारे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं बट बिजनेस नहीं करेंगे. एंड 20% ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, अंडर 18 है माने. ओके, और 20% ऐसे हैं जो बहुत क्रेजी हैं, अरे यार जब होगा देख लेंगे, अभी नहीं करना. कितने बचे? 40% माय डियर फ्रेंड्स. 40% का मतलब 50 करोड़ ऐसे लोग हैं इंडिया में हु आर वेटिंग फॉर यू, इंडिविजुअली यू. वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कोई आएगा और मेरी जिंदगी बदलेगा. अब वो कोई कौन होगा? वो या तो आप हो सकते हैं या मैं हो सकता हूं. राइट, आगे बात करते हैं. ये जो 50 करोड़ प्रोस्पेक्ट्स हैं, ओके, हमें इन्हें अप्रोच करना है. अप्रोच करने के लिए पहला तरीका, हम सब लोग अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को बढ़ाएं. कॉन्टैक्ट लिस्ट को बढ़ाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें. डरिए मत. और अब तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट और आसानी से बढ़ने वाली है, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग घर पर बैठे हैं. पहले तो वो समय नहीं दे पाते थे, अब वो समय दे सकते हैं. आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप उनको बोलिए, और मामा जी बिजनेस कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है? अरे कहाँ चल रहा है यार, घर पे बैठा हूँ. एक काम करो, मेरे साथ मीटिंग आओ फटाफट शाम को. वो आ जाएंगे क्योंकि वो खाली बैठे हैं. पहले तो कुछ भी करते थे, लेकिन अब आपके साथ आ जाएंगे. कॉन्टैक्ट लिस्ट के अलावा रेफरल. वो कहते हैं नहीं यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है यार तेरे काम में. कोई बात नहीं मामा जी, कुछ ऐसे लोगों का बताओ जो आपके साथ हैं लेकिन मैं उनके साथ बात कर सकूं. आप उनके नाम बताओ मेरे. रेफरल लेना सीखो. देन कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करना सीखो. कोल्ड कॉन्टैक्टिंग कैसे कैसे कर सकते हो? सोशल मीडिया एक बड़ा पक्का प्लेटफॉर्म है इस समय. ये जो दौर चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी लोगों को कोई ना कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करो आप सब लोग. Don't sit idle at home. There are very cheap course available and very good course actually available for you. I can recommend you one. That is UDAMY, Udemy. Udemy एक ग्रुप है जो कि शायद यूएसए से है, और ये बड़ा सस्ता कोर्स आपको 499 में सोशल मीडिया मार्केटिंग का कराते हैं. और आपको वो लाइफ टाइम एक्सेस देते हैं उनके वीडियोस के लिए. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस 499 के कोर्स में. Udemy, UDAMY. They are not giving me any penny for that, but I am recommending it to you because I know
इंडिया में 50 करोड़ लोग आपका और मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं सबको कवर नहीं कर सकता, तो व्हाई शुड नॉट आई डिस्क्लोज दिस टू यू, व्हाई शुड आई कीप इट हियर? इफ आई कैन एक्सपेंड योर बिजनेस, सर्टेनली मेरा चेक बढ़ेगा, मुझे पता है फॉरएवर का प्लान इस तरह से है, वो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। ओके, तो सोशल मीडिया पर आप अपनी कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट बढ़ाना शुरू कीजिए। अभी आगे बात करते हैं। अभी तक जो भी हमने बातें की, वो हमने बातें की कि क्या आपके लिए भविष्य और आपको क्या करना है। आगे कुछ और चीजें देखते हैं, जरा देखते हैं हमने अपने जीवन में अभी तक क्या पा लिया है, और ये वो आईना है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। आपको करना क्या होगा, एक मैं आपको अभी टेबल दूंगा, अभी तो सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स पे हम बातें करते हैं, इन 5 पैरामीटर्स में आपको करना क्या है, अपने आप को रैंकिंग देनी है। कागज पेन निकाल लीजिए, ये 5 पैरामीटर्स हैं जिन पर आज हम देखेंगे कि इन 5 पैरामीटर्स में हमने अपने जीवन में आज तक क्या पा लिया है। ओके, एंड आई टेल यू, ये वो मिरर है जो आपके सामने फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ में आया, यकीन मानिएगा। ये 5 पैरामीटर्स देखते हैं कि हम सक्सेस में कितने सक्सेसफुल हैं, फाइनेंस, लाइफस्टाइल, फ्रीडम और हैप्पीनेस एंड फैमिली। जरा देखते हैं क्या करना होगा आपको। सक्सेस का मतलब क्या होगा कि साहब मैं जब, चाहे मैं नेट में फॉरएवर के परिप्रेक्ष्य में बातें कर रहा हूं, सक्सेस का मतलब है कि आपने अभी क्या कर लिया है। ओके, कौन से लेवल पर आप है। फाइनेंस का मतलब खूब सारा पैसा, इतना पैसा कि मनुष्य सोच भी ना पाए। लाइफस्टाइल का मतलब आपका अच्छी से अच्छी लग्जरी हो। देन बात करते हैं फ्रीडम की, कि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई टेंशन नहीं है आपके ऊपर। और हैप्पीनेस एंड फैमिली, यू नो इट, कि आपने खुशहाल जीवन को जी रहे हैं अपने परिवार के साथ। क्या करना है आपको, समझिए, एक टेबल बनानी है आपको, ठीक ऐसे जैसे आपको दिखाई दे रही है, प्लीज बना लीजिए। ठीक ऐसे एक टेबल बनाइए आप सब लोग। साइमन सर, मेरी आवाज क्लियर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी प्रेजेंटेशन का। Yes sir, we can hear you clearly. Thank you sir. Okay, please draw this table as it is, and I can bet कि मुझे पता है आप मुझे बाद में भी कॉम्प्लीमेंट दोगे, इसके लिए मुझे मत दीजिएगा। एक्चुअली वंस अगेन दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड व्हेन आई वाज इन डेनमार्क, ओके, बाय मिस्टर क्रिस्टन वाइजनर, ओके, द गुरु ऑफ किम मैटसन। तो दिस इज नॉट मी, एक्चुअली मैंने कहा ना मेरा कुछ भी नहीं है, ये मिस्टर क्रिस्टन वाइजनर जो कि किम मैटसन के भी गुरु हैं, जो उनकी बताई हुई टिप है जो मैं आपको दे रहा हूं। आई होप आपने बना लिया होगा। करना क्या है जरा समझिएगा, अभी आगे कुछ मत कीजिएगा, पहले में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है 5 years बिफोर नाउ। आपको काम ये करना है कि 1 to 10 रैंकिंग देनी है साहब। किस तरह से समझाता हूं, सक्सेस, आपको लगता है मैं भरपूर सक्सेसफुल हूं, यार सक्सेस का नाम आने का मतलब है मेरा नाम। जब भी लोग सक्सेसफुल होने का नाम लेते हैं तो मेरा नाम लेते हैं। यू कैन गिव योरसेल्फ 10 marks, एंड इफ यू फील दैट अभी कहाँ है यार, यू कैन गिव अकॉर्डिंगली 2, 3, 4, नेवर गिव 0। ओके, 1 to 10 आपको अपने लिए मार्किंग देनी है। एंड वन मोर थिंग आई कैन, दिस इज द सीक्रेट, यू नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट फॉर यू। जो नंबर सबसे पहले आपके दिमाग से आए, प्लीज जस्ट राइट इट डाउन, नथिंग एल्स, नो काटा पीटी। फाइनेंसेस में आपको क्या लगता है आपके पास कितना पैसा, माने अगर आपको लगता है बहुत पैसा है, आपका इतना पैसा है कि कोई उसकी यू नो पता नहीं आपको कितना पैसा है, यू हैव अनलिमिटेड मनी, यू कैन गिव योरसेल्फ 10 marks। But if you feel no, yeah, I can even count what I have in my bank balance. So you need to give accordingly 1 to 9. Okay. Lifestyle. If you feel that you are enjoying a luxurious lifestyle, you have a Mercedes, you have a wonderful house, you have number of vacations every year to go, then you can give yourself 10 marks. But if you feel that no, yaar, abhi kahan, so 1 to 9 you can mark yourself. Freedom. Oh. कोई दिक्कत नहीं है यार, मुझे जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे मैं काम करता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मुझे जब चाहे कहीं भी ले चलो, घूमने के लिए तैयार हूँ, मौज मस्ती के लिए तैयार हूँ। अगर आप इस फ्रीडम को एंजॉय करो, गिव योरसेल्फ 10, अदर 1 to 9। एंड यस, मेरा परिवार खुश है, मेरे फैमिली में हर व्यक्ति खुश है, मैं एक हैप्पीनेस की लाइफ जी रहा हूँ, गिव योरसेल्फ 10, अदरवाइज 1 to 9, राइट। आई होप यू मस्ट हैव डन ऑल इट, यू ऑल मस्ट हैव डन इट, सॉरी। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 5। सबसे पहले आप इन 5 का टोटल कीजिए। सपोज आपने यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 4, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 5, तो आप इनका टोटल कीजिए। आज से 5 साल पहले 2015 में जाना होगा, ध्यान रखिएगा 2015 में जाना है कि आज से 5 साल पहले मैं कितना सफल था, कितने मेरे फाइनेंसेस थे, क्या मेरी लाइफ स्टाइल थी, क्या मैं फ्रीडम में था या नहीं था, और हैप्पीनेस एंड फैमिली। आपने इनको 5 years को ध्यान में रखते हुए देना है। ओके,
5 years पहले सपोज आपको लगता है नहीं यार मैं उतना सक्सेसफुल नहीं था, मुझे ऐसे मार्क्स लेने हैं, फाइनेंस नहीं उतने नहीं थे, जितना भी आपको लगता है उतना कीजिए और जो टोटल आया आप उसको डिवाइड कीजिए 5 से। ओके, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। आज आप कितने सक्सेसफुल हो उतने मार्क्स दीजिए। आज आप फाइनेंसेस में कहाँ हैं वहां मार्क्स दीजिए। लाइफ स्टाइल, फ्रीडम एंड हैप्पीनेस एंड फैमिली, सबको मार्क्स दीजिए प्लीज, और सेम में उनका टोटल कीजिए और सेम पे डिवाइड कीजिए 5 से। Your mirror is before you, my dear friends. You know what? I can honestly tell you. जब मैंने यहाँ पर से यहाँ पर आया था तो मेरा टोटल का जो डिफरेंस था वो मैं आपको चलो बाद में बताता हूँ, पहले आपसे शेयर कर लेता हूँ सारी चीजें। अब आप गौर से देखिए क्या हुआ होगा अंतर। मोस्ट ऑफ यू क्या हुआ होगा अंतर, कुछ लोगों की मैं बातें नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ अस ये अंतर क्या आया होगा, ज्यादा ज्यादा या तो ये बराबर होता है या ये बहुत थोड़ा सा बढ़ता है, बहुत थोड़ा सा, मे बी विद 0.1 और 2। माने हो सकता है आपका ये टोटल आया हो 20, आपने डिवाइड किया 5 से तो 4 आया, हो सकता है 25 आ गया हो, डिवाइडेड बाय 5 ये 5 आया हो, तो 4 to 5 हुआ। कई बार अगर ये 4 रह गया तो भी, 3.5 रह गया तो भी, आपको क्या दिखाई दे रहा है वो समझिए। आपने अपने पिछले 5 साल क्या किया है, राइट? पिछले 5 साल आपने क्या किया है? क्या अगले 5 साल भी आप अगर यही करते रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि अगले 5 साल बाद भी आप आज ही को रिपीट कर रहे होंगे? तो मेरा आपको सजेशन है, अगले 5 साल के लिए आज एक गोल लेते हैं हम लोग। वो गोल क्या होगा, हम सबको दिल में और दिमाग में हिम्मत करके अपने आप को 10-10 मार्क्स देने वाले हैं, 10 ईच, आज से 5 साल। तो द एवरेज विल बी 10 एंड बिलीव मी this is going to happen because we are in 2020 2025 फिक्की हमारे साथ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ है, यूनिवर्सिटीज हमारे साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, जितना आसान अब फॉरएवर करना होगा इससे पहले कभी नहीं हुआ था, बिलीव मी। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि लेस ब्राउन को याद रखिएगा। लेस ब्राउन ने क्या कहा था, वो लोग फेल होते हैं जो छोटा लक्ष्य रख के हिट कर देते हैं। हम तो लक्ष्य बड़ा रखेंगे ना यार। अगर मिस भी कर गए तो सपोज हमने 10 की जगह 8 भी लिया है एवरेज, तो इस 4 से तो अच्छा है ना जो आज है हमारा। Am I making sense? And if I'm making sense, do it with heart or brain and heart. जब तक अपने आप को आप मजबूती से नहीं बोलोगे ना, yes I am going to do this, you cannot do it, my dear friends, because we are not here for trial. I am not here for trial. My 1.5 hours what I'm going to give you is not free. This is because of Mr. Simon Davidson, जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ। I am here. So if I am here because of him. So don't let my this 1.5 years waste. I hope so. Okay? चलिए, इस बिजनेस की नेचर को भी समझिएगा प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं ये स्लाइड मैंने अपने आप से बनाई है, इंडिया में बनाई है। कुछ स्लाइड में कुछ चीजें मैंने कहा ना जोड़ के बनाता रहता हूँ। इस बिजनेस की नेचर को भी समझिए। जब आप इस प्रोसेस में जाएंगे तो क्या होगा, बहुत से लोग कहते हैं सर मैंने इतने लोगों को प्लान दिखाया, वो बंदा जोड़ करके मैनेजर को। बहुत से लोग कहते हैं सर मैंने 100 प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं मिले। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। हर व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा, ध्यान रखिएगा। हर व्यक्ति आपको ज्वाइन नहीं करेगा, हर व्यक्ति को आपके प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आएंगे, और हर व्यक्ति इसको आप स्पॉन्सर करेंगे वो मैनेजर नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा 4 चीजें। एक किसान की तरह सोचिएगा, एक फार्मर की तरह सोचिएगा। जब किसान अपने खेत में जाता है ना दोस्तों, वो सबसे पहला काम क्या करता है, उस खेत को तैयार करता है जिसमें वो फसल बोने वाला है। सबसे पहला काम उस खेत को तैयार करता है। वो आपका खेत है, ये दिस इज योर फील्ड, यू हैव टू प्रिपेयर इट, इसको तैयार राइट। दूसरा काम वो क्या करता है, वो अपने बैग में से जिसमें उसने बीज भरे हुए, सीड्स भरे हुए हैं, उस बैग में से एक बीज नहीं दबाता। कभी भी देखिएगा वो अपने हाउस मतलब पूरे के पूरे हाथ लेता है भर करके और फिर स्प्रेड करता है पूरे खेत में, राइट। हैंडफुल ऑफ सीड्स ही स्प्रेड्स ऑल ओवर द फील्ड, राइट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस समय वो इन बीजों को फेंक रहा है, वो ऊपर वाले से प्रार्थना क्या करता है कि ये भगवान जितने बीज मैंने डाले इस खेत में वो सारे के सारे फले फूले बड़े हों, सब ग्रो हों। लेकिन वो एक बात भी जानता है, ऐसा होगा नहीं। इन्हीं बीजों में से कुछ को चिड़िया उड़ा के ले जाएंगी, कुछ मौसम की मार नहीं झेल पाएंगे, लेकिन कुछ बीज ऐसे होंगे जो जड़ पकड़ेंगे और मेरे लिए फसल बना करके मेरे और मेरी पीढ़ियों का ध्यान रखेंगे। द सेम वे यू हैव टू थिंक इट, सेम वे।
आपको जब भी मिलना है लोगों से यही दुआ के साथ कि हे भगवान इसके साथ ये बिजनेस खूब बड़ा करे, लेकिन ये ध्यान रखते हुए ऐसा जरूरी नहीं है, ना प्रोडक्ट्स के मामले में ना बिजनेस करने के मामले में। एंड चूंकि जब आप ये सोच चुके हो ना, किसान के साथ क्या होता है, जब उसके कुछ बीज चिड़िया ले जाती है ना, तो वो चिड़िया के पीछे नहीं भागता है, उसे पता है ऐसा होगा। जब उसके कुछ बीज मौसम की मार नहीं झेल पाते तो इसके लिए वो कोई बहुत कुछ नहीं करता, तो उसे पता है यार ऐसा होगा, वो इंतजार कर रहा है उन बीजों का जो जड़ पकड़ने वाले हैं, वो उन्हीं का ही ध्यान रखता है। आपको भी ठीक ऐसे ही करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा आज प्लान करते हैं। मैंने कहा ना कि अगर हम 5 साल की प्लानिंग पर बात कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा प्लान करना होगा। और वो बड़ा प्लान क्या होगा, आपको सबको टारगेट लेना है आज कि मैं 5 फ्रंट लाइन मैनेजर्स खोलने वाला हूं अपने साथ। फ्रंट लाइन मैनेजर्स मींस आपको आगे पता चलेगा। अभी टारगेट आप कितना बड़ा लेते हैं, दिस इज अप टू यू। वंस अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए आपको कम से कम 100 लोगों को रिक्रूट करना होगा। अब ये कौन से वाले रिक्रूट होंगे वो समझ लीजिए, ये वो रिक्रूट नहीं होंगे जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया होगा काम। ये रिक्रूट का मतलब है ऐसे लोग जो एटलीस्ट 2 सीसी पूरे कर चुके हैं, एएस। आपको उसके लिए क्या करना होगा, अगर आप चाहते हैं आपके पास 5 फ्रंट लाइन मैनेजर्स हो तो आपको 100 लोग ऐसे चाहिए जो 2 सीसी कर चुके हो। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको कम से कम 400 लोगों से करना होगा, प्लान होगा, जिसका मतलब क्या है, आपको 1000 कॉल्स करनी होगी। नीचे चलते हैं, अगर आप 1000 कॉल करेंगे तो आपको 400 1-to-1 का मौका मिलेगा। 400 1-to-1 का मौका मिलेगा तो उनमें से 100 लोग आपके एएस होते हैं और इन 100 लोगों में से 5 लोग आपके फ्रंट लाइन मैनेजर हो सकते हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ती है पंकज जी, है ना? जरा देखते मिलता क्या है। ऑन एन एवरेज अगर आपने 5 फ्रंट लाइन मैनेजर्स निकाल दिए तो आपकी इनकम हो सकती है समवेयर 25 लाख रुपीज पर एनम। यकीन नहीं हो रहा ना, ये 25 लाख कम लिखे हैं मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने फॉरएवर के बिजनेस में इसको एंजॉय किया है एज ए सोरिंग मैनेजर। मैं आपको बता सकता हूं मेरी इनकम 35 से 40 लाख रुपए महीना है, सालाना है, सॉरी। तो आप समझिए ये मैंने 25 लाख जानबूझ के लिखी है। और अगर आपने 25 लाख रुपए साल में कमा लिए तो 100 रिक्रूट जो आपने किए, यानी हर रिक्रूट जो आपने किया, 5 ही तो बने ना इसमें से मैनेजर, लेकिन हर रिक्रूट आपको 25,000 रुपए देके चला गया। इज इट अ गुड इनकम? जितने लोगों को आपने प्लान दिखाया, हर प्लान चाहे कितने ही फेल, 300 लोग फेल हो गए, 300 लोग आपके साथ नहीं जुड़े थे, 300 लोगों ने कुछ नहीं किया, पर हर प्लान जो आपने दिखाया वो 6,250 रुपीज आपको देके चला गया। और वो जो 1000 कॉल की, हर कॉल आपको 2,500 रुपीज देके चली गई। मंथली बिल कितना आता है आजकल? शायद 150-200 रुपए, 150 to 200 रुपीज पर मंथ। आपको हर कॉल 2,500 रुपीज दे सकती है, राइट? एंड यू आर ए सोरिंग मैनेजर। आप इसको 1 साल में भी कर सकते हैं, आप इसको 2 साल में भी कर सकते हैं, आप इसको 3 साल में भी कर सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है, हाउ बिग यू थिंक। ओके, 1000 कॉल्स, 400 प्लान्स, 100 रिक्रूट्स विद 2 सीसीज, 5 आप गारंटेड 5 फ्रंट लाइन मैनेजर्स के साथ सोरिंग मैनेजर जाने वाले हैं। और एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा मैं आपको, जितने भी रिजल्ट्स हैं बिलीव मी आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, कितने हार्ड आप एफर्ट्स करते हैं। तो यहाँ पर ये इनकम क्लेम का मेरा दिखाने का मतलब ये नहीं कि साहब आपने मिलने वाला है, ये 25 लाख भी हो सकते हैं, 30 लाख भी हो सकते हैं, 35 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। द मोर यू पुट इन द मोर यू आर गोइंग टू गेट। आगे बात करते हैं साहब, इसके लिए का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो उनको काम का मौका दे सकें, जो उनको आशा दे सकें, जो उनको फ्रीडम दे सकें। और यही तो लोग आपके पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स होने वाले माय डियर फ्रेंड्स। ये वो लोग होंगे जो आपके साथ काम करके तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं आपका। आपको सिर्फ ढूंढना है और आपको इनको मिलना है और मिल करके सिर्फ ये देखना है कि क्या वो आपका डायमंड है या नहीं है, क्या वो आपका एस है या नहीं है, बस। ओके, छोटा सा एक बड़ा मजेदार चीज है जो मैंने हरीश सर से चुराया है। मैंने फिर से कहा, मैं नाम भी बता देता हूँ, कभी मैंने किस किस से चुराया है। ये ट्रेडिशनल वे है इनकम का, जितने ज्यादा आपके एफर्ट्स होंगे उतनी आपकी इनकम होगी, राइट? ये आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ अर्निंग। लेकिन आज मैं आपको रिवर्स जी कर्व बताने जा रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, फॉरएवर में क्या होता है, जरा देखिए। शुरुआती दौर में आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, पर आपकी इनकम कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आपके एफर्ट्स कम होने शुरू हो जाते हैं और आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है। दिस इज सेम विद, अगर मुझे पता नहीं सूर्य सिन्हा सर अगर आप आ गए तो आपको मेरा प्रणाम। और सूर्य सिन्हा जी को मैं जानता हूँ, अगर मैं गलत नहीं, अस्तेकर यहाँ बैठे हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, ज्योति को मैं पर्सनली जानता हूँ, राजीव जी को मैं जानता हूँ, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ।
और बहुत सारे मैनेजर्स एंड अबव यहाँ बैठे होंगे, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपके सबके नाम नहीं पता है। एफर्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं और इनकम बढ़ने लगती है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ये है फॉरएवर का बिजनेस। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आखिरी स्लाइड के नजदीक आया हूं। कभी भी जिंदगी में हार मत मानिए और कभी भी सरेंडर मत कीजिए, दो काम कभी मत कीजिए। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआती दौर में एक बात सुनी थी जो मैं आज आपके सामने कहने की हिम्मत करूंगा। इस बिजनेस को करने के दौरान आपके साथ 3 घटनाएं होंगी। पहली इवेंट होगी आपकी डेथ हो सकती है, आप ऊपर वाले को प्यारे हो सकते हैं। दूसरी आप क्विट कर सकते हैं और तीसरी आप डायमंड जा सकते हैं। डेथ हो सकती है, क्विट कर सकते हैं, डायमंड जा सकते हैं। अब देखिए मजेदार बात क्या है, ये वाली जो घटना है, ये वाली जो इवेंट है यानी डेथ वाली, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, रेक्स के हाथ में, ये ऊपर वाले के हाथ में, तो इसको हम अलग कर देते हैं। दूसरी घटना, दूसरी इवेंट किसके हाथ में, क्विट करना आपके, बस इसको मत होने देना। यू विल सर्टेनली गो वन डे डायमंड, आई कैन एश्योर यू। जो डायमंड नहीं जाएंगे वो लोग होंगे जो क्विट करेंगे, वरना हर व्यक्ति जो क्विट नहीं करेगा वो डायमंड ही जाएगा यहाँ पर। ओके, और फिर एक बात मजेदार है, क्यों हम दूसरों के लिए अपने सपनों की तिलांजलि दें, क्यों हम अपने सपनों को दूसरों के लिए सरेंडर कर दें। यू नो व्हाट, मैंने पढ़ी वढ़ी तो नहीं है बहुत सारी चीजें, धार्मिक ग्रंथ मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं। साइमन यहाँ पर है, शायद मेरी हेल्प करें। मैंने बाइबल, एक बार मैं एक यूएस के एक्चुअली एक फादर का सरमन सुन रहा था जी न्यूज पे, सॉरी साइमन आप मुझे बताइएगा, पता नहीं बाइबल का उन्होंने जिक्र किया था। बाइबल में उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि इन लाइफ यू विल हैव एन एनकाउंटर व्हाट वी कॉल ड्रीम थीव्स। They are your near and dear ones. They will be coming to you without giving you any notice, and they will come and steal your dreams without even telling you. ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया था कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनको हम स्वप्न चोर कहते हैं, ड्रीम थीव्स कहते हैं। ये आपके जानकार हैं, ये आपके नजदीक रहने वाले लोग हैं, ये आपके आसपास आएंगे, आपको बिना बताए आपके सपने चुरा करके ले जाएंगे। Why to allow them? आपका सपना सिर्फ आपका है, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, किसी और का हो नहीं सकता। और आप यकीन मानिए, आपको जो भी राय बहादुर बनता है, जो भी आपको राय देता है, ये मत कर वो मत कर, आपको पूछो तू मेरे सपने पूरे करा देना है, चल मैं नहीं करता आज से काम, क्या वो करा देगा? वो नहीं कराएगा। सो व्हाई टू सरेंडर योर ड्रीम्स फॉर समवन अदर्स पॉइंट? जो उसका नजरिया रहने दो, आप अपने सपनों के साथ किसी और को खेलने मत दो। सेकंड, डोंट रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन। हर किसी व्यक्ति के हर सवाल का जवाब मत दो। मुझे ध्यान है, एक बार की बात है, मुझसे किसी बंदे ने कहा, भाई साहब आप बताते हो कि आपके बहुत बड़े बड़े एलो फील्ड्स हैं, एक बात बताओ, अगर आपके एलो फील्ड्स को बकरी खा गई तो क्या जवाब दूं मैं इसका, बताओ मुझे आप। मैंने कहा हाँ यार, क्या तो सही रहो तुम, भगवान आपकी रक्षा करे। मैं ये कह के हट गया था वहां से। डोंट रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, देयर इज नो नीड, राइट? एंड थर्ड वन इज डोंट पे अटेंशन टू ऑल द डॉग्स हु आर बार्किंग ऑन योर वे। हर भौंकते कुत्ते पर आपको ध्यान दोगे तो यकीन मानिए आपकी स्पीड रुक जाएगी। और ये मैटर ही स्पीड का माय डियर फ्रेंड, जितनी ज्यादा स्पीड से आप आज आगे बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप कामयाब होने वाले हैं। जितना स्पीड को स्लो रखेंगे उतना ही ज्यादा आप पीछे हटेंगे। देखिए मैं आपको एक स्टोरी से रिलेट करना चाहूंगा। बचपन से सुनते आया हम एक स्टोरी, कछुआ खरगोश की। उसका मॉरल क्या बताया गया? स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। एंड मैंने इसको बचपन से निगेट किया है, मैंने कभी भी इस मॉरल को एक्सेप्ट नहीं किया, बिलीव मी, मैं मानता भी नहीं कभी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं और बड़े बड़े ठोक कर कहता हूं अपने आप को कि अगर खरगोश सोता नहीं तो दुनिया की कोई ताकत कछुए को हरा नहीं सकती, जिता नहीं सकती थी। कछुआ जीता इस वजह से क्योंकि खरगोश सो गया था। तो इसका मतलब ये मॉरल गलत है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मेरा मानना है इफ यू आर स्लो एंड स्टडी यू विल रियली रीच योर टारगेट वन डे, बट व्हाई टू वेस्ट द टाइम, व्हाई टू वेट फॉर टाइम, okay? Why to become like a tortoise when you have an opportunity to run like a rabbit, right? आज इस स्टोरी को सुनाता हूं आपको ताकि आपको टीम वर्क का महत्व पता चले। ये स्टोरी कुछ हमने जो सुनी बचपन से वो ऐसी सुनी कि साहब कछुआ खरगोश की रेस हुई और इस तरह से हुआ, लास्ट में खरगोश सो गया, कछुआ जीत गया, ओके? और फिर लास्ट में हमें मोरल मिला। बट एक्चुअली मेरा कहना क्या है कि स्लो एंड स्टडी कैन नेवर विन द रेस, बट यस अल्टीमेटली दे कैन रीच द टारगेट। लेकिन असलियत क्या थी कि खरगोश अगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो ओवर कॉन्फिडेंट ही हो गया ना कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, मैं कछुए को हरा दूंगा, तो कहानी कुछ आगे बढ़ी। जब कछुआ और खरगोश अपने अपने घर पहुंचे तो कछुआ के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उसका स्वागत किया, लेकिन खरगोश और उसके जो खरगोश के जो रिलेटिव्स, उसके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसको बड़ा गालियां दी, तूने हमारी नाक कटवा दी, कछुए से हार के आ गया। तो खरगोश ने फिर चैलेंज किया कछुए को,
खरगोश ने कहा भाई अब क्या एक रेस और रखते हैं। अब क्या रेस रखी गई, कछुए को पता था मैं नहीं जीतूंगा, पर फिर भी उसे मजबूरी में आना पड़ा। अब जब आया तो खरगोश इस बार सोया नहीं और वो जीत गया। अब जब वो जीत गया तो अब कछुआ, इसका जो मॉरल था वो क्या था कि अगर आप कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके चलें, अपनी पोटेंशियल को मेंटेन करके चलें, तो आप कभी हारने वाले नहीं हैं। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अब जब कछुआ घर पे पहुंचा तो उसके दोस्तों ने कहा बेटा देखा, वो तो हमें पता था तू, तेरी खुशकिस्मती थी, तू जीत गया। कछुए ने दिमाग लगाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझिए। कछुए ने दिमाग लगाया एंड कैन यू बिलीव क्या हुआ, उसने खरगोश को चैलेंज कर दिया। आपकी बार आप बेटा आपकी बार जीत के दिखा। कैसे? एक रेस हुई आपकी बार, उस रेस में ये स्टार्टिंग पॉइंट था, अगर आपको मेरा हाथ दिख रहा हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। यहां से खरगोश और कछुआ एक साथ भागे। जब ये भागे तो भागते भागते खरगोश पहले पहुंच गया, कछुआ धीरे 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 यहां पर आया। यहां थी नदी, नदी के पार था विक्ट्री पॉइंट। तो खरगोश को तैरना आता नहीं था, तो कछुआ आया धीरे धीरे, तैर करके जीत गया। इस कहानी का मोरल क्या है, थर्ड वाली का, कि अगर आप अपने इंटरनल पोटेंशियल, हर व्यक्ति को ऊपर वाले ने दिया, अगर पहचान लें, हर व्यक्ति के अंदर वो पोटेंशियल है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप उनको पहचान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। 3 बार की इस रेस की वजह से खरगोश और कछुआ दोस्त बन चुके थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इस बार एक रेस और हुई। यहां पर क्या हुआ, खरगोश की पीठ पर कछुआ बैठा और ये दोनों एक साथ नदी पर पहुंचे। कछुए की पीठ पर खरगोश पहुंचा बैठा और ये दोनों ने साथ नदी पार की। और फिर आगे खरगोश की पीठ पर कछुआ बैठा और ये दोनों एक साथ विनिंग पॉइंट पर पहुंचे, विक्ट्री पॉइंट पर पहुंचे। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास ऐसे सारे लोगों का समूह, टीम मिल जाए जिनके अंदर अलग अलग पोटेंशियल है, और अगर आप इनको इकट्ठा कर लो तो आप पता नहीं क्या से क्या चमत्कार कर सकते हो डियर फ्रेंड्स। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे आर इजी। For me, becoming manager was very difficult, but today I can teach so many to become manager. For me, senior manager was very difficult level, but once I became senior manager, I started teaching many to become senior manager. For me, becoming storing manager was a little difficult, but once I became, I started teaching many to become storing manager. Everything actually is difficult before it becomes easy. तो अगर आप आज यहाँ पर ये सोचते हैं कि साहब मैं जल्दी जल्दी और मेरे लिए मैनेजर बनना मुश्किल है, तो आपके लिए, सबके लिए मुश्किल था। लेकिन जिस दिन आप उस पर पहुंचेंगे, वो जो मजा लेने वाले जिंदगी का वो अनंत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारे ब्लेसिंग्स, और मैं दुआ करता हूँ आप लोग जब अगली बार मिलें, मेरे लिए आपकी तरफ से बहुत से लोग कहते हैं सर आज की ट्रेनिंग में बहुत अच्छा लगा, मुझे वो नहीं सुनने का है। मुझे मेरा सबसे बड़ा जो रिवार्ड होगा वो होगा कि एक दिन आप मुझे मिलेंगे और आप बोलेंगे सर एक द फ्यूचर करके आपने मेरी ट्रेनिंग ली थी, उस ट्रेनिंग का परिणाम है आज यहाँ मैं मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरी मैनेजर, सफाई मैनेजर हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय सर। थैंक यू साइमन सर। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। 1 मिनट आपको जाने नहीं देंगे इतना जल्दी। हार भी नहीं पिला सकेंगे, लेकिन आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक। मेरे को जो ये आपका जो ट्रेनिंग है, इनफैक्ट ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ द लीडर्स वो अटेंडिंग टुडे, दे लव्ड योर प्रेजेंटेशन, इट वाज फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग। और व्हाट अनदर थिंग व्हिच आई लाइक अबाउट यू इज योर बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि आपने मेरे को बोला इंग्लिश में बोलो, हिंदी में, आई सेड नो, for you your body language is so fantastic के people क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज देख के और जो प्रूफ देख के ना और ये हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी कंपनी में बोल वचन होता है। सो आई वुड लाइक टू thank you a lot for coming and educating not just me, even our full team, because also I keep on learning every day. मैं भी सीखते रहता हूँ, because जितना हम लोग सीखेंगे उतना अच्छा है। तो we really loved your presentation, outstanding. Or I would like to thank you from Rajiv, Jyoti, from our top leaders, Kanojia, then Santosh. We are all a team, and we are all really blessed to have a speaker like you. It was outstanding. So, Pankaj, ये तो पहले टाइम है, अभी और आना पड़ेगा आपको। I am always ready, sir. I am always ready for any time, sir. Nothing we have made you the opening batsman now, but बहुत आपको आना पड़ेगा। So I would like to really thank you, really from my bottom of my heart. You have been mind-blowing and fantastic, and I have seen your growth from the starting stage. मैं अभी भी याद है, मेरे को वीडियो अभी भी है वियना वाला, जो मैं स्टेज दे रहा था, and you were so interesting looking at it. I still have the video, so I see it very often. So fantastic. I would like to thank you again for all the best wishes. Thanks a lot.
and welcome. Really blessing from our full group to you. So may you really succeed and let's forever rock. मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा इस बात से कि आप सब लोग एक बहुत अच्छे लीडर के संरक्षण में हैं और मिस्टर साइमन डेविडसन जिनको मैं अब से नहीं, मैं पिछले जैसे मैंने आपके शुरू से फॉलो कर रहा हूँ एंड मजेदार बात क्या है, ही सिंसियर फॉर हिज बिजनेस एंड ही सिंसियर फॉर हिज बिजनेस विद फन. ओके, मौज बिजनेस करना और ये आसान काम नहीं होता है, बट हियर ही कीप्स एवरी टाइम एवरीवन एनर्जेटिक बाय गिविंग सो मेनी फनी थिंग्स, टेलिंग देम, एंड नॉट ओनली फनी थिंग, हर चीज के पीछे मैसेज होता है. So you are really lucky to have Simon Davidson as your mentor, as your upline. So मेरा एक ही कहना होगा कि आप सिर्फ इनके बातों को सुनिए, समझिए और उसी तरह से काम करना शुरू कीजिए. You will be really successful for that. Thank you very much, sir. I feel I should take leave of you because I am. Yes, again thank you. अभी thank you. नमस्ते ऐसे नहीं करते, नमस्ते ऐसा करते हैं. नहीं साइड में क्यों चेहरा भी दिखना चाहिए. Thanks a lot. Really blessing and salute. Thank you, sir. Thanks for you. Thank you, sir.